ابتدائی رپورٹ کے مطابق بدقسمت طیارہ فضائی پرواز کے لیے 100% فٹ تھا۔ پائلٹ اور کو پائلٹ فوکسڈ نہیں تھے، ان کے ذہن پہ کورونا سوار تھا۔ کنٹرول ٹاور نے اسے منع کیا کہ آپ زیادہ ہائٹ پہ ہیں، آپ نیچے آئیں۔ بڑی جلدی میں اس نے اس کی کال سنی اور اس نے کہا یار میں مینج کر لوں گا۔ 3 بار جہاز لگتا ہے، پھر جمپ لیتا ہے، پھر لگتا ہے، پھر جمپ لیتا ہے۔ کوتاہی دونوں سائڈ سے تھی۔ انکوائری سٹل جاری ہے۔ یہ رپورٹ جو آج پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ہے یہ ادھوری رپورٹ ہے۔ السلام علیکم، ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پس پردہ اور میں ہوں نادیہ نقی۔ نیشنل اسمبلی میں آج وزیر ہوا بازی نے پی آئی اے جو کراچی حادثہ ہوا تھا، طیارہ حادثہ کیس، اس کی جو عبوری رپورٹ ہے وہ پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ کنکلوڈ نہیں کیا جا سکتا، ابھی یہ عبوری رپورٹ ہے، لیکن اس عبوری رپورٹ میں انہوں نے بڑے انکشافات بھی کیے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس وقت تک جتنی بھی ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ بعد میں یہ کہا جائے گا کہ تمام تر ہم پر، یعنی اپوزیشن یہ کہے گی کہ ہم پر الزام لگائے جا رہے ہیں، لیکن بہت خرابیاں ان کے زمانے میں کی گئی ہیں جن کو اب ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ بہرحال طیارہ حادثے کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خود کاکپٹ کی ساری ریکارڈنگ جو گفتگو ہوتی ہے دونوں پائلٹس کے درمیان وہ بھی سنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈی آر ڈی ہے اس کو بھی سنا ہے، یعنی ایوری ایکشن دیٹ از ٹیکن بائی دی پائلٹ وہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ جب وہ ڈی کوڈ ہو گیا تو اس کے بعد اب تک یہ سمجھ میں آیا ہے کہ ایئر ٹریفک کنٹرولر اور پائلٹس کی غلطی کی وجہ سے جو ایس او پیز تھے وہ فالو نہیں کیے گئے، جو طریقہ کار تھا وہ فالو نہیں کیا گیا، جس کے بعد یہ حادثہ پیش آیا۔ انہوں نے بتایا نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہ لینڈنگ کے وقت، یعنی جب اپروچ ہوتی ہے، جو ریکوائرڈ آلٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ تھا، یعنی 2500 فیٹ کے اوپر آپ اپروچ کرتے ہیں، لیکن پائلٹ کا 7000 فیٹ تھا۔ جب اس سے کہا گیا تو انہوں نے اس پر زیادہ صرف اتنا کہا کہ میں مینج کر لوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آٹو پائلٹ سے اس کو مینول پائلٹ کے اوپر ڈالا گیا، اور اس کے بعد جب لینڈنگ کے لیے 5 ناٹیکل مائل سے پہلے ہی لینڈنگ گیئر کو پہلے کھولا گیا اور اس کے بعد 5 ناٹیکل مائل سے پہلے اس کو بند کر دیا گیا۔ نتیجتاً جو طیارہ ہے اس نے رن وے پر بیلی لینڈنگ کی، 3 جگہ سے انجن ٹکرایا، چنگاریاں نکلی، لیکن نہ تو پائلٹ کو ایئر ٹریفک کنٹرولر نے یہ انفارم کیا، نہ ہی کوئی اس طرف سے کوئی بات ہوئی۔ اس کے بعد سیکنڈ اپروچ کے لیے جب ان کو کہا گیا تو اس وقت تک ظاہر ہے کہ نہ تو وہ آلٹیٹیوڈ، نہ وہ تھروٹل تھا، نہ ہی وہ اس کو مینج کر سکے، اور جو طیارہ ہے وہ آبادی پر گر کر تباہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سب سے زیادہ انکشافات کیے اس میں انہوں نے بتایا کہ پی آئی اے ایک ادارہ جس میں اتنی تباہی مچی ہوئی ہے، پولیٹیکل انٹرفیرنس بھی رہی، اور سب سے زیادہ انہوں نے کہا کہ جعلی ڈگریاں صرف پارلیمنٹ یا بیوروکریسی میں نہیں بلکہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ادارے میں 600 ڈگریاں جعلی ہیں۔ جب پائلٹس کا ذکر کیا تو وہ تو بڑا سٹارٹلنگ جسے کہتے ریولیشن تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ 860 ٹوٹل پائلٹ لائسنسز ہیں، جو صرف پی آئی اے کے نہیں بلکہ دیگر جو ایئر لائنز پاکستان میں ہیں یا جو پرائیویٹ کلبز کے پائلٹس ہیں ان کے پاس جو لائسنس ہے کل ملا کے 860، جس میں سے 262 ایسے ہیں جو کہ مشکوک ہیں۔ کئی تو ایسے ہیں جنہوں نے خود بیٹھ کر ایگزام تک نہیں دیا اور ان کی جگہ کسی اور نے ایگزام دیا۔ یہ بڑے سوالات اٹھتے ہیں نہ صرف اس پورے ادارے پر، اس کی کارکردگی پر، گزشتہ حکومتوں پر، بلکہ خود جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے سول ایویشن اس پر بھی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس پر آج بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو فواد چودھری صاحب کا انٹرویو جس کی کل سے بازگشت ہے، اس کے بعد آج دیکھا گیا کہ بڑی متحرک ہیں وزیر اعظم، ملاقاتیں کرائی جا رہی ہیں اسد عمر، فواد چودھری صاحب کے درمیان، شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے تاکہ کسی صورت جو ہے وہ ان تمام معاملات کو اب ٹھیک کیا جا سکے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب تیر نکل جاتا ہے کمان سے تو اسے واپس لینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب کیا وزیر اعظم جو ہیں وہ اس اپنی کیبنٹ کے ڈسپلن کو، اپنی پارٹی کے ڈسپلن کو مینٹین کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ اور جو ڈیمیج ہوا ہے فواد چودھری صاحب کے اس انٹرویو اور ان کے سٹارٹلنگ ریولیشن سے کہ پارٹی جو ہے اس لیے کارکردگی اب تک 2 سال میں تبدیلی نہیں لا سکی کیونکہ اندرونی اختلافات ہیں، ان دونوں پر بات کرنے کے لیے اپنے محترم مہمانوں کا تعارف کراتی چلوں۔ ہمارے ساتھ آج ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے اخندزادہ چٹان صاحب،
ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असेंबली के मेंबर हैं अली गौहर साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, पहले बात करेंगे जो तैयारा हादसा केस है उसकी अबूरी रिपोर्ट पर, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये कहा है कि ये बड़ी अजीब बात है और गलत बात है कि आप पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के ऊपर सारी जिम्मेदारी आयद करते हैं। जब कभी ऐसा होता है तो ख़ुद वज़ीर आज़म ने कहा था कि वज़ीर को रिज़ाइन करना चाहिए, तो इस केस में भी जो वज़ीर हैं उनका इस्तीफ़ा बनता है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अखुनज़ादा चटान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली गौहर और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद हमारे साथ हैं। पहले बात कर लेते हैं जो अबूरी रिपोर्ट आज नेशनल असेंबली में पेश की गई तैयारा हादसा की। अखुनज़ादा चटान साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पर यह कहा है कि वज़ीर को रिज़ाइन कर देना चाहिए और ये बड़ा गलत है कि ATC पर और पायलट पर सारी जिम्मेदारी आयद की जा रही है। गो कि अभी वफाकी वज़ीर ने यह कहा था कि हम कंक्लूड नहीं कर रहे, दिस इज़ जस्ट जिसे अबूरी रिपोर्ट कहते हैं, ये अभी वो है। सो अब तक की ये क्यों समझते हैं कि अगर वज़ीर रिज़ाइन कर देगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि फरवरी 2019 से जो वफाकी वज़ीर ने बताया जो इंक्वायरी तश्कील दी गई है और वो इंक्वायरी बोर्ड 22 ग्रेड के अफसर हेड करते हैं उसको, उसमें पता चलता है कि 860 पायलट के लाइसेंस में से 262 मशकूक हैं। कई तो ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में खुद पेश भी नहीं हुए, किसी और को बिठा के ये लाइसेंस ले लिए गए। तो इदारे तो गुज़िश्ता हुकूमतों में तबाह तो हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इदारे चाहे किसकी हुकूमत में, ये एक लंबी बहस है कि किसकी हुकूमत में और किन किन अदवारों में और किन किन वजूहात की वजह से ये इदारे तबाह हो गई। लेकिन ये हकीकत है कि इदारे तबाह तो है, और PTI के गवर्नमेंट ने और जनाब मोहतरम इमरान नियाज़ी साहब ने वादा किया था कौम के साथ कि मैं कमेटी बनाऊंगा, मैं इंक्वायरी कर रिपोर्ट बनाऊंगा और मैं इस इदारों को, आप लोग देख लेंगे कि हम इस इदारों को चलाएंगे, हम इस इदारों को बेचेंगे नहीं। ये जो रिपोर्ट आ चुका है, ये तो हमेशा से अगर ट्रेन का कोई हादसा हो जाता है तो इस तरह का इंक्वायरी बनाई जाती है और फिर इसका रिपोर्ट कुछ अर्सा बाद आ जाता है और सारा ड्राइवर के खाते में डालती है। अगर जितनी भी जहाज क्रश हुई है और जहाज एक्सीडेंट हुई है, इसकी रिपोर्ट एक एक करके आप उठाए तो इसमें भी वही तमाशा हुआ है कि रिपोर्ट बनाया है और असल हकीकत तक कोई पहुंचा नहीं है। अच्छा। एक मुकम्मल रिपोर्ट इंक्वायरी बनाना चाहिए। PIA भी सारी खराबियों का पता कि इसमें डिपुटेशन पे कितने लोग आए हैं, क्या किसी इदारे से लोग डिपुटेशन पे किसी और इदारे में जा सकते हैं, अगर जा सकते हैं तो डिपुटेशन के आदमी को वहां प्रमोशन मिल सकते हैं। ये सारा सब कुछ खराबी जहां भी है, इसकी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत की है और उन्होंने कौन से वादा भी किया था। मौजूदा हुकूमत पर अब सारी जिम्मेदारी आयद कर रहे हैं। अगर तो इनके दौर में ये लाइसेंसेस भी दिए गए हों, 600 तो फेक डिग्री होल्डर्स हैं PIA में, 3 पायलट्स का तो उन्होंने तो मतलब 1.5 साल से कोई फ्लाइंग नहीं की हुई। इसके अलावा एक तो ऐसी खातून पायलट है जिन्होंने यहाँ से लाइसेंस लिया, सिमुलेटेड सर्टिफिकेट भी मिला, जॉब वो टर्की में करती हैं, पैसे वो PIA से ले रही हैं। मतलब कुछ अजब तमाशा नजर आता है, एंड इट्स अ शेयर एम्बैरेसमेंट। और आपको भी बड़े हैरान होना चाहिए कि 262 पायलट्स ऐसे हैं इस मुल्क में जिनके लाइसेंस मशकूक हैं। मैं इस पे हैरान इसलिए नहीं हो रहा हूँ कि ये तमाशे पहले भी हमने बहुत देखे हैं, लेकिन जब तक एक हकीकी इंक्वायरी, टारगेट इंक्वायरी नहीं, एक हकीकी इंक्वायरी हो जाए और ये सारी नफूस सामने आ जाए और जिन लोगों की जो जो गलती है उसको, इनकी गलतियों को सजा मिले और जहां जहां पे गलती है इनकी तलाफी हो जाए। ठीक है, आप भी कहते हैं कि ये अच्छा, आप कहते हैं ये जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए है। क्या अली गौहर साहब आप भी इसको टारगेटेड समझते हैं? मतलब आपके दौर में भी PIA में जो कुछ हुआ सबके सामने है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में पॉलिटिकल भर्तियां भी हुई, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हुई, यूनियंस को सपोर्ट भी किया गया, बहुत कुछ हुआ। देखिए नादिया, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता कि हमारे दौर में सियासी भर्तियां हुई इसमें। अगरचे ये इदारा जो है ये अरसा दराज से नतात पजीर है,
جس طرح سے ہمارے ملک کو کبھی بھی جمہوری طریقے کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا موقع نہیں ملا، اسی طرح سے اداروں کی بھی تباہی کا موجب ہمارے غیر جمہوری رویے ہیں جنہوں نے ہمارے اداروں کو کمزور کیا، اور وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اداروں کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اور سیاسی جماعتوں کے بنانے کے لیے اور توڑنے کے لیے استعمال کیا۔ میں آپ کو پی آئی اے کی جو انکوائری رپورٹ ہے، میں اپنے دادا صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی ایگزامپل دوں گا کہ وہ آپ کو میں یہ ایگزامپل دوں گا کہ اس میں جو ابھی آپ نے دیکھا جو چینی اور آٹے کی رپورٹ آئی، اس میں جو کیبنٹ تھی جو اپروول دینے والی تھی اس کے ہیڈ کون تھے؟ ہمارے پرائم منسٹر تھے، اور جو پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے خود سب اپروول دی، لیکن آپ نے دیکھا کہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں ان دونوں کو بری الزامہ قرار دیا گیا، اور جو خسرو بختیار منسٹر تھے ان کا نام جو ہے وہ کہا کہ وہ تو گوڑ صاحب ذرا پی آئی اے تیار حادثے پر آ جائیں نا، اس رپورٹ پر آ جائیں، کیا آپ اس رپورٹ کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں؟ میں اپنی بات کو اسی طرف لا رہا ہوں کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے اداروں کی یہ حالت ہے کہ ان میں اس قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں، لہذا یہ جو ابھی بھی انکوائری رپورٹ ہے یہ بالکل بھی میں سمجھتا ہوں کہ غیر جانبدارانہ نہیں ہے، اور اس میں بھی کچھ لوگوں کے اوپر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اور کچھ لوگوں کو بچانے کی کوشش کی گئی، اور یہ لیکن گوہر صاحب، غلام سرور صاحب نے یہ کہا کہ طیارے میں کسی قسم کا کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں تھا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کاکپٹ وائس ریکارڈر ہوتا ہے اس میں بھی کہیں یا ایون کمیونیکیٹ بھی نہیں کیا گیا کہ کسی قسم کی کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے اس طیارے میں۔ دیکھیں یہ تو ساری باتیں ہیں نا جو ان کی انکوائری رپورٹ میں، لیکن بہت ساری باتیں ہیں اگر کسی نیوٹرل ایجنسی سے اس کی انکوائری کروائی جائے، انٹرنیشنل جو ہماری ایجنسیز ہیں جو اس کے بارے میں انکوائری کرتی ہیں ان سے انکوائری کروائی جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، آپ ریجیکٹ کرتے ہیں، لیٹس ٹیک اٹ فارورڈ، واپس آتے ہیں نا، اسی کی طرف واپس آتے ہیں۔ آپ نے ریجیکٹ کیا، اخنزادہ چٹان صاحب بھی کہتے ہیں یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، واٹ ڈو یو ریڈ آف دا رپورٹ؟ آپ کو بھی لگتا ہے کہ ابھی بھی ایز کمپیئرڈ جیسے انٹرنیشنل انکوائریز ہوتی ہیں، ظاہر ہے یہ اس طرح کی انکوائری نہیں ہے، اس سٹینڈرڈز کے اوپر ہم جب کرائیں گے تو اپوزیشن مانے گی، لیکن فی الحال جتنا کچھ سامنے آیا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ پائلٹس کے ذہن پر کرونا سوار تھا، وہ صرف کرونا جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے، ان کا فوکس نہیں تھا، اور اسی لیے انہوں نے آٹو لینڈنگ سے مینول پہ کیا، گیئر کھولے لینڈنگ گیئرز، پھر لینڈنگ گیئرز بند کر دیے، اے ٹی سی کو نہیں سنا، اور اے ٹی سی کی بھی جو غلطیاں ہیں وہ بھی انہوں نے کہا کہ وہاں پر بھی کافی غلطی نظر آتی ہے، اور لیکن ان کے خلاف کسی کارروائی کا ابھی تک بتایا نہیں گیا ہے اے ٹی سی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نادیہ صاحبہ۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ انکوائری جو ہے ہر حالت میں ریاست پاکستان کے ادارے جو ہیں جو ایکسلنٹ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، یہ انہی کی ذمہ داری ہے کہ انکوائری انہوں نے کرنی ہے، وہ کو آپٹ کرتے ہیں اس کیس میں ہر حالت میں۔ ایئر بس والے جو ہیں وہ بھی آئے تھے اور وہ پھر وائس ڈیکوڈر جو ہے وہ لے گئے ریکارڈر، اور اس کو ڈیکوڈ کیا، ہمارے لوگ بھی وہاں پہ گئے اور پوری انفارمیشن لے کے واپس آئے، تو ان کو بھی ٹیکنیکلی کنسلٹ کیا گیا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بے شک یہ پروویژنل انکوائری ہے، لیکن کلیئرلی نظر آتا کہ یہ ایک پائلٹ ایرر تھا۔ ٹیکنیکل ایرر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انجن مال فنکشن نہیں ہوئے، انجن فیل نہیں ہوئے، لینڈنگ گیئر فیل نہیں ہوئی، تو اور اس میں بالکل یہ جو فیاسکو تھا لاسٹ منٹ پہ، یہ جو 10-15 منٹ پہلے ہوتا رہا، اس میں اے ٹی سی کا ایئر ٹریفک کنٹرولر کا بھی بڑا رول تھا، کیونکہ ایئر ٹریفک کنٹرولر کا کام ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اس کو پائلٹ کو گائیڈ کرے ہر پوائنٹ پہ، خاص کر لینڈنگ فیز جو ہے وچ از اے ویری کرٹیکل فیز، تو وہ کوآرڈینیشن جو ہے وہاں پہ بھی ہمیں بالکل ایک گڑبڑ جو ہے وہ نظر آئی ہے۔ میرا پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ اس سے زیادہ کیا ٹرانسپیرنٹ معاملہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، وہ پی آئی اے کے انکوائری کی جو رپورٹ ہے، چاہے بے شک ابھی وہ پروویژنل ہے، وہ اس کو وہ پارلیمنٹ میں لا کے جو ہے وہ پیش کرتی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو گلگت والی جو سکردو والا جو اے ٹی آر کا کریش تھا پی اے کا، اس کی رپورٹ یا ایئر بلو کی جو اسلام آباد میں جو پہاڑوں میں جو کریش ہوا تھا وہ رپورٹ پبلک کی جائے گی۔ تو میرا خیال ہے حکومت اپنی ذمہ داری کر رہی ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ یہاں پہ کسی کو چھپایا جا رہا ہے۔ ذہن میں رکھیں
ये हमेशा एरर जो होते हैं वो एक्सीडेंट जो है वो या पायलट एरर होते हैं या टेक्निकल एरर होता है या फिर जारी बात है कोई कोई एबनॉर्मल वेदर फिनोमेना हो। तो यहाँ पे तो हमें पहले ही लग गया था जितना एविडेंस सामने आ रहा था कि ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पायलट एरर प्लस द मैन इन द एयर ट्रैफिक कंट्रोल। और जारी बात है इस पे जब रिपोर्ट फाइनलाइज होगी इनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने देखिए ये कहा है और आप भी समझते हैं कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमेशा ये कहा करते थे वाइल ही वाज इन ऑपोजिशन कि वजीर को इस्तीफा दे देना चाहिए, आपको लगता है आज उन्होंने डिमांड किया है कि गुलाम सरवर खान साहब को भी इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं देखें, वजीर का वो वही बात है ना कि जब भी कोई रेलवे का एक्सीडेंट होता है, हाँ अगर खुदा न खास्ता सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स हो जिस तरह रेलवे में हुए थे तो मैंने खुद कहा था मीडिया पे आके कि शेख रशीद को रिजाइन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चले एक एक्सीडेंट हो गया, आप बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि जी पीआईए के जो चीफ हैं वो रिजाइन करना चाहिए, वो इज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इम्पोर्टेंट बात देखें इस वक्त क्या है कि पीआईए को बड़ी मुश्किल से टर्न अराउंड करने की कोशिश की जा रही है। पीआईए का जवाल 90s में शुरू हुआ था जब पीआईए में सियासी भर्तियां हुई थी, जब पीआईए में बाद में जाली डिग्री वाले लोग आए थे। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हमारे मोहतरम सेनेटर मुशहिदुल्लाह साहब ने क्या कहा है, उनकी बड़ी मशहूर चीज आती है बार बार अपना सोशल मीडिया पे कि जनाब जाली डिग्री वालों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी नौकरियां चली जाएंगी, उनको फारग नहीं करना चाहिए। माय पॉइंट इज दिस, हमने खुद अपने हाथों से सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने पीआईए को यहाँ तक पहुंचाया है। अब तो अच्छा अगर सक्सेसिव अच्छा ये जो लाइसेंस जाली हैं उनकी डिग्रियां जाली हैं। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे फैसले दिए हुए। अभी देर किस बात की है भाई, इन तमाम जाली डिग्री लोगों को, जाली लाइसेंस होल्डर वालों को फारग कीजिए। ओके, मैं यहाँ पर मैं एक ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर देखिए सवाल ये है कि जिन्होंने जाली डिग्री शो की, जो इस तरह से काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो आप इदारती जो इदाराजाती कार्रवाइयाँ होती हैं उन्हें फारिग करना है वो करेंगे, लेकिन जिन्होंने इनकी सहूलत की इस लाइसेंस को हासिल करने में, एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी सिविल एविएशन जो ज़्यादातर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन हमेशा एयरफोर्स के लोग ही ज़्यादातर जो है जनरली देखा जाए रिटायर्ड उसको हेड करते आए हैं, तो फिर ये सवाल उन पर भी उठेगा कि व्हाट काइंड ऑफ अ रेगुलेटरी अथॉरिटी इज सिविल एविएशन, वो क्या देख रही है, वो क्या काम कर रही है। और फिर रिफॉर्म्स की जब हम बात कर रहे हैं तो यही इमरान खान साहब प्राइवेटाइजेशन की बात करते थे, आज आप उनको 60 अरब रुपए दोबारा देने को तैयार हैं, ये रिफॉर्म्स होंगे या नहीं, और रिफॉर्म्स के लिए क्या यूनियंस का होना ज़रूरी है, ये सारी बातें करते हैं राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही है तैयारा हादसा केस की, जो अबूरी रिपोर्ट सामने आई है, आज उस पर बात कर रहे हैं हम ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब से, अली गौहर साहब से और अखुनज़ादा चट्टान साहब से। अखुनज़ादा चट्टान साहब, फिर ये भी तो सिविल एविएशन के ऊपर भी तो बड़े सवालात हैं, और साथ में देखें इस पर भी आप बात कीजिएगा, रिफॉर्म्स कैसे आ सकते हैं पीआईए में जब तमाम पॉलिटिकल जमातें अपनी अपनी जगह यूनियंस के पीछे जाकर उनको सपोर्ट करती हैं, और रिफॉर्म्स के लिए बहुत लोग ये समझते हैं कि यूनियंस ना हो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो तो फिर ही काम बन सकता है। देखिए जी, यूनियंस तो सारी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। सारे मुहज़्ज़ब दुनिया में यूनियंस होते हैं, और ब्रिगेडियर साहब ने 2 बार कह दिया कि सियासी भर्तियां हुई है। सियासी गवर्नमेंट किन लोगों को भर्ती करते हैं? ट्रैफिक कंट्रोल को, जो लोडिंग करते हैं, अनलोडिंग करते हैं, जो लोगों को टिकट्स देते हैं, जो लोगों को खाना देते हैं। असल मसला वहां पे नहीं है, मसला है पॉलिसी मेकर्स में। आप मुझे बताएं कि ये इदारा, इसके नाम आप एक एक का ले ले, अभी भी ले ले, इससे पिछले का भी ले ले, इससे पिछले का भी ले ले, कि जो पॉलिसी मेकर है वो लोग कौन है, कौन इस इदारे को चला रहे हैं, इन लोगों से पूछना चाहिए, इन लोगों का एहतिसाब होना चाहिए। नहीं, कौन चला रहे हैं आप बताएं, कौन चला रहे हैं? आपकी गवर्नमेंट में कौन चला रहा था पीआईए? जितनी जमहूरी, और मैं एक एक का नाम लेके क्या करेंगे? नहीं, आप पूरा इसका डेटा निकाल दी। चट्टान साहब, जिसकी हुकूमत है वही तो इदारों को चलाती है ना, वही तो जिम्मेदारों को लगाती है। मैं यही आपसे कह रहा हूं कि आप लिस्ट निकाल के देख ले कि ये इदारा किन लोगों ने चलाया है अभी तक, यानी जब से ये इदारा बना है कितने लोग आए हैं और कौन कौन लोग आए हैं और कहां कहां से लोग आए।
असल में पूछना तो इन लोगों से चाहिए, इंक्वायरी तो इन लोगों का करना चाहिए। और जो ब्रिगेडियर साहब ने कह दिया कि हुकूमत ने एक वो अजीम काम की, और तो ये अजीम काम नहीं किया, ये डाइवर्ट करते हैं हमेशा। जिस तरह की चीनी और आटे का एक्सपोर्ट का ऑर्डर दिया जनाब मुहतरम इमरान नियाजी साहब ने, और ये दिया मुज़्ज़ार साहब ने, और सारा सब कुछ इन लोगों पे डाल दिया जिन्होंने बेनिफिट्स दिया था। अगर हुकूमत किसी को बेनिफिट्स देता है वो तो बेनिफिट्स लेगा। जनाब मुहतरम इमरान नियाजी साहब से डिवाइड करने के लिए किसी और तरफ डालने की कोशिश की। So over the years PIA में जो खराबियां आई हैं उसकी सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आप कैसे दे सकते हैं? 2 साल का आप जरूर दे दें इनको कि 2 साल में इन्होंने क्या किया। इस PIA के इदारे के लिए बड़ा कुछ इन्होंने कहा था लेकिन कर नहीं सके। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तहरीक इंसाफ वाले हमको कहते हैं ये स्टेटस-क्वो के लोग हैं, ये इदारों को ठीक नहीं कर सकते। हम आएंगे तो हम इदारों को ठीक कर देंगे। अभी ये लोग आए हैं और तकरीबन कोई 2 साल से ज्यादा इन लोगों का टाइम हो चुका है। अब ये इदारों को ठीक करे। अब ये देख ले कि जाली डिग्री वालों को किसने लाया है, तो जाली डिग्री वाले से पहले इस बंदे को पकड़े जिसने किसी के दौर में तो लगा हुआ होगा ना ये जाली डिग्री वाला। सबसे पहले तो मैं खैरात पेश करता हूँ इस बंदे को जिसके पास न डिग्री है न लाइसेंस है, और फिर भी जहाज उड़ाता है और कामयाबी से उड़ाता है। अमेरिका भी लेके जाता है, बर्तानिया भी लेके जाता है, मुल्क के अंदर भी उड़ाता है। लेकिन फिर भी अगर जाली डिग्री वाले हैं तो इस बंदे को पहले पकड़ना चाहिए। सही, जिस बंदे ने ये जाली डिग्री वाले बंदे को लगाया है उसको पहले पकड़ना चाहिए, ख्वाह वो आपकी हुकूमत में क्यों ना हुआ हो। हाँ चट्टान साहब, वो ख्वाह आपकी हुकूमत के दौरान क्यों ना हुआ हो। राइट, मैं कह रहा हूँ कि मेरा लीडर हो, मैं खुद हूँ, मेरा बाप हूँ, जो भी मुल्क से बढ़ के कोई नहीं। सही, बिल्कुल सही। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने कर दी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं कह रहा हूँ, मैं एक शॉर्ट अर्ज जो बिलावल साहब का डिमांड है वो यही है कि भाई आप लोग इंक्वायरी करें, केस को डिवाइड नहीं करें कि पायलट की कसूर है और पायलट और ये जाली डिग्री वाले हैं। जाली डिग्री वाले आखिर किसी ने तो लगाए हो गया, हर एक का टेनेवर का पता है कि ये बंदा जब इसमें भर्ती हुआ। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये ट्रैफिक कंट्रोल का कसूर नहीं है। जिस तरह के ब्रिगेडियर साहब बार बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों की बात करते हैं, वो बेचारे तो टिकट्स देते हैं, वो तो लोडिंग करते हैं, अनलोडिंग करते हैं, जहाज के अंदर लोगों को सर्वे करते हैं, खाना देते हैं। इसका वो क्या कर सकते हैं? सही, असल जहाँ पे कसूर है उनको पकड़ना चाहिए। मैं पहले लूंगा तो मैं तो वतन का गद्दार बन जाऊंगा। अलबत्ता ब्रिगेडियर साहब से मेरा तौक़्क़ा है कि वो खुल के इन लोगों का नाम लें। ओके जी, ब्रिगेडियर साहब, पहले ब्रिगेडियर साहब की तरफ आ जाती हूँ। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा, सिविल एविएशन अथॉरिटी, आई मीन दैट्स द हाईएस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ एविएशन, वो क्या काम करती आई है इतने सालों? उन्होंने कैसे ये लाइसेंस का इजरा नहीं देखा? देखिए जी, बात बड़ी क्लियर है। सिविल एविएशन अब वो इदारा नहीं रहा जो कि आज से 2 दहाई पहले था। मेरी नज़र में सिविल एविएशन भी एक करप्ट इदारा है। यहाँ पे भी करप्शन बिल्कुल डीपली उसके रूट्स है, और ये जाली डिग्रियां, जाली लाइसेंसेज, और खासकर हर साल या हर दूसरे साल जो पायलट्स का जो मेडिकल होता है उनको दोबारा मेडिकल कैटेगरी उनकी बहाल जो होती है, उनकी फ्लाइट कैटेगरी, उसमें भी बड़े पैमाने पर हमने हमेशा ये सुना है। एविएशन में क्योंकि मेरा ताल्लुक रहा है, हमें सिविल एविएशन वाले लोग मिलते रहते हैं, बताते रहते हैं कि बड़े पैमाने पर वहाँ पे बेकायदगी और ये चीजें होती रही हैं। सही। और दूसरी बात ये है कि देखें, मैं ये एक चट्टान साहब जो है बड़े हमारे लिए काबिल एहतराम है और उन्होंने एक दो बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन मैं यहाँ पे फिर दोबारा एक बात दोहराना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेड यूनियन जो आई थी यूनियंस वहाँ पे PIA में, देखें इन्होंने यूनियंस बिल्कुल चले अगर हैं तो ठीक है, उनका मकसद यही होता है कि वर्कर्स का इंटरेस्ट जो है उसको रखा जाए वगैरह वगैरह मैनेजमेंट के साथ। लेकिन अगर वो जो यूनियंस हैं वो मैनेजमेंट को ब्लैकमेल करना शुरू कर दें, PIA के जो ऑपरेशनल
एफिशिएंसी है उसमें हायल होना शुरू हो जाए, तो फिर भर्तियों में वो इन्वॉल्व हो जाए, करप्शन में वो इन्वॉल्व हो जाए, स्मगलिंग में वो इन्वॉल्व हो जाए। ब्रिगेडियर साहब जो तो फिर आप इतना मुझे बताएं इतना कि वो नहीं, unions हैं, उनका क्या ठीक है, होगा? आपकी बातें बिल्कुल सही हैं और रिफॉर्म्स के हवाले से भी बहुत कुछ प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। आई जस्ट वांट वन लाइन फ्रॉम यू बिफोर आई हैव टू टेक अ ब्रेक, क्योंकि अली गौहर साहब भी इस पर बात करना चाहेंगे। आप नहीं समझते कि जिन इदारों के लिए इमरान खान साहब कहते थे कि इनको तो फौरी तौर पर हमें प्राइवेटाइज करना है बिकॉज दे आर वाइट एलिफेंट्स, अभी भी पीआईए के लिए 60 अरब रुपए चाहिए इस साल के लिए भी, सही है देना, या आपको लगता है कि इसमें रिफॉर्म्स अब नहीं लाए जा सकते, ये इदारा वाकई बिल्कुल बुरी तरह तबाह हो चुका है और 2 साल में नहीं आए कोई रिफॉर्म्स? देखिए नाजी साहबा, वो मैं समझता हूँ कि अभी भी पीआईए का एक रिवाइटलाइजेशन प्लान है, उस पर अमल हो रहा है और हमें थोड़ा टाइम और देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अभी जो लास्ट इनके जो फाइनेंशियल जो खबरें आई हैं उसमें तो ये था कि इनका ग्रॉस रेवेन्यू में इनको प्रॉफिट भी हुआ है, ठीक है, इनकी कई अरबों में इनकी जो है लाइबिलिटी भी है। तो पीआईए एक नेशनल एसेट है, अगर आप इसको औने पौने किसी के हाथ बेच देंगे तो वो भी ठीक नहीं है। नेशनल एसेट जिसके हवाले से पायलट्स की मशकूक लाइसेंस की खबरें सामने आने के बाद ये भी सोचना होगा कि बैनुल अक़वामी सतह पर ये भी मुमकिन है। कैप्टन रिटायर्ड एजाज हारून साहब ने भी ये कहा कि इस तरह से जिस तरह जो खुद भी रह चुके हैं, पीआईए को हेड कर चुके हैं, कि जिस तरह से एग्ज़ाम्स दिलवाए जाते थे, जिस तरह से कहा जाता था इसको पास कर दो, उसको कर दो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बढ़ी रही है, ये वो तमाम तर खराबियां हैं कि फिर दुनिया कहीं पीआईए के प्लेन्स को आना बंद ना कर दे, ये सुन करके कि बहुत से पायलट्स ऐसे हैं कि जिनके लाइसेंस मशकूक हैं। अली गौहर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए ताकि कता कलामी ना हो और उस पर फिर आप नज़र डालिएगा कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा यूनियंस के पीछे जाकर खड़ी हो जाती हैं, क्यों आप लोग नहीं चाहते कि इदारों को मजबूत किया जाए और जो भी खराबियाँ हैं स्पेशली पीआईए में तो बहुत नज़र आती हैं, इट्स अ वाइट एलिफेंट, उसको सही करने के लिए क्या आप लोग सब तैयार हैं, या जब रिफॉर्म्स की बात होगी हर पॉलिटिकल पार्टी अपने ग्रुप को सपोर्ट करने चली जाएगी? वेलकम बैक। अली गौहर साहब, ये बताइएगा, आप कहें कि क्या हम नहीं देखते आए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा जो भी इदारे हैं, उनकी यूनियंस हैं, उनकी कैसी भी डिमांड्स हों, उन इदारों में कितनी भी मसाइल हों, हमेशा यूनियंस के पीछे जाकर सियासत की है और आज भी ये लगता है कि अगर चांस मिले तो बिलशुमूल पीटीआई के वो उन्हें भी यूनियंस को सपोर्ट करते आए हैं। सो आपको नहीं लगता कि जब तक के यूनियंस फ़िलहाल ख़त्म ना कर दी जाएं और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल बंद कर दी जाए, जब तक आप इदारों के अंदर रिफॉर्म्स नहीं ला सकते? नादिया, बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इदारों में नहीं होनी चाहिए और दूसरे नंबर पे ये है कि जो यूनियंस है और ख़ास ये में जो यूनियन की कहानियाँ सामने आई हैं वो अरसा दराज इस तरह से हैं कि जिस पर साफ लगता है कि इस जो यूनियन की पॉलिटिक्स है उसने इस इदारे को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। लेकिन मैं साहब की भी बात सुन रहा था, दादा साहब की भी बात सुन रहा था, असल में ये है कि आपकी बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब से ये इदारा बना, आपको पता है कि पीआईए हमारा एक ऐसा इदारा है कि जो दुबई की एयरलाइन है उसको भी पीआईए के लोगों ने बनाया था और आज वो कामयाबी के साथ चल रहा है और हम लोग जो हैं आप देख लें हम अरबों के साथ चल रहे हैं। इसकी असल वजह ये है कि जितनी भी साबका हुकूमतें हैं बिल्कुल ऊपर जो है इंक्वायरी होल्ड होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि किस गवर्नमेंट में कौन सी भर्तियां हुई और उस वक्त जो हमारे इसके एविएशन के सरबराह थे वो कौन थे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। लेकिन मैं साथ ही साथ कि उस वक्त से जमहूरी हुकूमतें कितना अर्सा रही हैं या आप देख लें गैर जमहूरी हुकूमतें या गैर जमहूरी ताकतों के जरिए उनके जरिए असर चलने वाली हुकूमतें वो कितना अर्सा पाकिस्तान पर सही। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग कह रहे हैं कि ये जरूर होना चाहिए कि किसके भी दौर में हुई हो, फिर निकालें कि किसने किसको भर्ती किया था। एक लास्ट क्वेश्चन आप तीनों मेहमान से, क्योंकि वक्त बड़ा कम है। चट्टान साहब, आज जो वजीर आजम मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं, जो डैमेज फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू ने पार्टी को और उनके अपने होल्ड को कर दिया
दिया है इमरान खान साहब के। आपको लगता है कि अब जितनी भी मुलाकातें हों, दोस्तियां हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अभी भी वो कंट्रोल नहीं ला पाएंगे इमरान खान साहब पार्टी डिसिप्लिन में भी और काबीना पर भी? देखिए जी, इस अजीब तरह का हुकूमत है, इसका आपस में न कोई कोऑर्डिनेशन है, न कोई इस तरह का कोई चीज है। कोरोना का जो वजीर है असद उमर, वो कह रहे हैं कि जुलाई तक जो है हमारा कोरोना का 12 लाख तक पहुंच जाएगा। और जो एजुकेशन का मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि हम अनकरीब स्कूल खोलने वाले हैं। तो इन लोगों का वजीर आजम रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, कल सुबह आ जाते हैं कि कल से लॉकडाउन होगा। मैं समझता हूं कि पार्टी में इस तरह के इख्तिलाफात आ जाते थे तो ये सारा चीज जहांगीर तरीन हैंडल करते थे, और जहांगीर तरीन के जहाज में एक करिश्मा था, एक कमाल था, ये सबको मानना पड़ेगा। अब जहांगीर तरीन के बगैर मैं नहीं समझता हूँ कि जनाब मुहतरम इमरान लीजी साहब अपने पार्टी के अंदरूनी जो इख्तिलाफात है इस पे काबू पा सकते हैं। बाइंडिंग फोर्स आप कहते हैं, बाइंडिंग फोर्स जो है वो जहांगीर तरीन थी। माजरत के साथ अखुंजादा चट्टान साहब, क्योंकि वक्त कम है, दीगर दो मेहमान भी इसके ऊपर जल्दी से कमेंट कर दें। दो लफ्ज़ जी जी कह दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फवाद चौधरी के जरिए तो ये पैगाम दिया है असद उमर और शाम मुस्कुरीशी को कि हमें पता है कि आपको कौन सवाल आते हैं, हमें पता है कि आप वज़ीर आज़म बनने के उम्मीदवार है। तो ये जो पैगाम था ये इमरान के लिए नहीं था, ये इमरान की तरफ से शाम मुस्कुरीशी और असद उमर के लिए था कि हमें पता है कि आप ख्वाहिशमंद है, आपके पुरस्कार होते हैं, आपकी मुलाकातें होते हैं, हमें हर चीज का पता है। अच्छा, ये आपने कहा कि इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी के जरिए पैगाम दिया है। गौहर साहब, आप क्या समझते हैं, कामयाबी हासिल होगी टू गेट द होल्ड इन पार्टी, पुट एवरीथिंग इन एट रेस्ट, या आपको लगता है कि जहांगीर तरीन ही वो बाइंडिंग फोर्स थे और उनके ना होने से, जैसे चट्टान साहब कहते हैं, कि ये मुमकिन नहीं होगा खान साहब के लिए? नहीं, देखिए नादिया, इस वक्त जो मेरी राय है उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है ये जमहूरी तरीके के साथ इलेक्ट होके नहीं आई और इसमें दीगर सर्कमस्टांसेस ज़्यादा इन्वॉल्व थे इसके मुंतखब होने। मुंतखब का लफ्ज़ तो मुनासिब नहीं, इसकी सिलेक्शन में, लेकिन गुजारिश ये है कि आप इनकी कैबिनेट उठा के देख लें, इनकी जो कैबिनेट है वो चू चू का मुरब्बा है और दीगर पार्टियों से लोग लाए गए और जो इसमें बिठाए गए, जब इनकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, जब इनकी पार्टी में कैबिनेट में बैठे हुए लोग जो वो भी कहीं और से इंपोर्ट होकर आए हैं, तो ऐसी हुकूमत डिलीवर कर ही नहीं पाएगी। इनमें से हर मिनिस्टर दूसरी जुबान इस्तेमाल करेगा, हर मिनिस्टर का आपस में इख्तिलाफ राय होगा। जब वुज़रा एक दूसरे का गिरेबान पकड़े होंगे, जब इनकी लीडरशिप में एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते हैं, तो फिर ऐसी हुकूमत कैसे डिलीवर कर पाएगी? और इख्तिलाफात तो होते हैं ना, अब आज रफा दफा भी हो जाएंगे मामलात, सबकी मुलाकातें भी हो रही हैं, सो हो जाएगी, फिर डिलीवर कर देंगे जो वादे किए हैं। नादिया, बात इख्तिलाफात खत्म होने की नहीं है, बात यह है कि जब आपकी हम आंगी नहीं है, जब प्राइम मिनिस्टर के नीचे जो है लोग बैठे हुए, उनके स्टेक्स और हैं, उनकी राय और है, उनके रिमोट कंट्रोल्स कहीं और है, तो वो लोग कैसे डिलीवर करेंगे? वो एक नाम रिमोट कंट्रोल्स कहीं और है। ये बड़े ज़बरदस्त किस्म की लाइन आप देकर जा रहे हैं। बहरहाल शो का वक्त ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात रहेगी, देखना है किस हद तक कंट्रोल हो सकता है। आज बुज़दार साहब की भी बड़ी मुलाकातें हुई हैं कि तेज़ करना है काम हलकों में। तो परफॉर्मेंस वाली बात जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 6 माह के अंदर अंदर हमें अगर परफॉर्मेंस सही नहीं की तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। देखना है इस हुकूमत के हवाले से बहुत सारी बातें ज़ाहिर है क्लोज डोर्स में भी होती हैं। ख़ुद पीटीआई के दोस्त भी कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो वादे किए वो पूरे नहीं हो सके, फिर बड़े मसाइल, कभी इकॉनमी, कभी अब कोरोना वायरस। लेकिन बहरहाल जब आप आते हैं इक़्तिदार में तो डिलीवर तो करना होता है। किस तरह से पार्टी को रीगादर करेंगे, किस तरह से ये तमाम चीज़ों को अब सेटल डाउन किया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।